Hello friends, today let us do a quick revision of helping verbs. So I have prepared some exercise for you. Let us discuss how these helping verbs are used. Filling the blanks. I dash going to the market. So now here it is going. Going means ing form of main verb. So where do we use ing? We use ing in continuous sentences. So how do we use it? I am going to the market. मैं market जा रहा हूं. Right? He dash done his work. Now this is the third form of main verb. This is the third form of do. So which helping verbs comes with the third form of do? Has, have or had. But preferably we will use here has. Okay? If there is no hint mentioned in the sentence, so you should always consider it as a present sentence. Right? So he has done his work मतलब वह अपना काम कर चुका है या उसने अपना काम कर लिया है. He dash sing a song. Sing is the first form. Sing कौन सी form है? First form है. So which helping verbs comes with the first form? कौन सा helping verb आएगा? Right. So here it will be he will sing a song. वह गाना गाएगा. He will sing a song. Ram dash his work. Ram dash his work means राम और उसका काम. तो क्या आएगा इसमें बीच में? Friends, Ram does his work. Either you can use does or you can say Ram did his work. See, यहां पे जो does और did आ रहा है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, ये एज ए मेन वर्ब आ रहा है कि राम उसका काम करता है. राम डज हिज वर्क मतलब राम उसका काम करता है और राम डिड हिज वर्क मतलब राम ने उसका काम किया. तो यहाँ पे डज और डिड हम यूज कर रहे हैं, ये एज ए मेन वर्ब आ रहा है. यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आ रहा है, पर चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं डज और डिड, तो वी कैन राइट दिस डज एंड डिड हियर. राइट? Okay. We dash playing yesterday. Again ing form, but there is an hint. Yesterday. It means it is continuous, but it is past continuous. So we were playing yesterday. I dash return a letter. अच्छा, we were playing yesterday मतलब हम कल खेल रहे थे. That is the meaning. Okay. I dash return a letter. Return is third form. So which helping verbs comes with the third form? Has, have or had. So this is again I have रिटर्न अ लेटर. मैं लेटर लिख चुका हूं. आई डैश पोस्टेड द लेटर यस्टरडे. अगेन थर्ड फॉर्म, बट हियर हिंट इज गिवन यस्टरडे मींस दिस एक्शन फिनिश्ड इन डीप पास्ट. सो हियर इट विल बी आई हैड पोस्टेड द लेटर यस्टरडे. मैंने कल लेटर पोस्ट कर दिया था, कर चुका था. पास्ट परफेक्ट. वी डैश लर्न द चैप्टर. लर्न विच फॉर्म इट इज? इट इज फर्स्ट फॉर्म. वी डैश लर्न द चैप्टर. So what will come here with first form? We will learn the chapter. यानी कि हम चैप्टर पढ़ेंगे. India dash lost the match. Again lost is the third form. तो यहां पे ये क्या आएगा आपका? कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? Has, have और had. तो India has lost the match. यानी कि इंडिया मैच हार चुकी है. He dash going to the Chandigarh tomorrow. Again it is ing form, continuous. Going means continuous, but again there is a hint which is tomorrow means we are talking about future continuous sentence. So here it will be he will be going to the Chandigarh tomorrow. He will be going to Chandigarh tomorrow. So this is how we use helping verb in simple sentences. Let's take some other example. कुछ और example लेते हैं. Correct or incorrect? You have to tell me which sentence is correct and you have to correct whichever is wrong. Right? So I am gone to school. Is it correct? It's not correct, my dear friend. Ismr जो होता है वो ing के साथ यूज किया जाता है. I am gone नहीं होता है, तो it is incorrect. So how will you make this sentence? I am going to school. मैं स्कूल जा रहा हूं. I am going to school. Radha are singing a song. Radha is singular. Radha is a name of a person. So it's a singular. Singular के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे? Radha is singing a song. Radha is singing a song. She has cooked the food. अब now she has के साथ कौन सा फॉर्म आ रहा है? थर्ड फॉर्म आ रहा है. इट मींस इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि उसने खाना बना लिया है या वह खाना बना चुकी है. तो इट्स ए करेक्ट सेंटेंस. तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया. She has cooked the food. I did not cheat in the class. Didn't आ गया, did not आ गया, सिंपल पास्ट सेंटेंस हो गया ये. और यहां पे डिड के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है.
सो इट्स अगेन करेक्ट सेंटेंस। मैंने क्लास में चीट नहीं किया, आई डिड नॉट चीट इन द क्लास। आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूं मतलब रूटीन एक्शन हो गया हमारा। दिस इज अगेन सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है हमारा। दे हैव डांस इन पार्टी, नाउ अगेन दे हैव डांस इन पार्टी, अगेन वी आर यूजिंग हैव, तो हैव के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों? डांस्ड। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस कि दे हैव डांस्ड, यानी कि वे पार्टी में डांस कर चुके हैं, उन्होंने पार्टी में डांस कर लिया है या वे पार्टी में डांस कर चुके हैं। डज इट रेन एवरी डे इन लंदन, क्या लंदन में रोज बारिश होती है? होती है मतलब ये रूटीन एक्शन हो गया आपका। सो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। यू इज गुड पर्सन, इट्स नॉट करेक्ट माय डियर फ्रेंड, इट इज यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। सचिन डू नॉट स्टडी एवरी डे, अब नाउ सचिन इज सिंगुलर, सचिन रोज पढ़ाई नहीं करता है, तो यहां पे डू नॉट नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, यहां पे क्या आएगा? सचिन डज नॉट, क्योंकि सचिन सिंगुलर है। सचिन डजंट स्टडी एवरी डे, सचिन रोज पढ़ाई नहीं करता है। वी आर कंप्लीटेड क्वेश्चन पेपर, नाउ अगेन दिस इज रॉन्ग, आर के साथ ये कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म नहीं आता है। इधर वी कैन से वी आर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन पेपर, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन पेपर, तो इट इज अगेन इनकरेक्ट। यहां पे आप बना सकते हैं कि वी आर कंप्लीटिंग क्वेश्चन पेपर, और यू कैन से वी हैव completed question paper, right? So this is how we make these sentences, right? Let us move to the another example, एक और example अपन लेते हैं। make negative और positive interrogative sentences, ठीक है? what we have to do is we have to convert the sentences into either into negative interrogative or positive interrogative. So I do my work daily, so we have to convert this sentence into negative interrogative. I do my work daily, मैं अपना काम रोज करता हूं। अब मैं अपना काम रोज करता हूं मतलब पहले भी करता था, अभी भी करता हूं, रूटीन एक्शन है मेरा। दिस इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट बोलते ही दिमाग में क्या आता है? डू एंड डज। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा बॉस, ये लगेगा डू आई नॉट डू माई वर्क डेली, डू आई नॉट डू माई वर्क डेली। रिमेंबर हियर वी हैव टू डूज, यहां पे हमारे पास दो डू है, एक ये जो डू है दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, एंड ये जो डू है दिस इज योर मेन वर्ब, ये एक्शन है हमारा। ये डू तो एक्शन है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो क्या मैं अपना काम रोज नहीं करता हूं? तो डू आई नॉट डू माई वर्क डेली, राइट? दिस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस। वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल मतलब हम फुटबॉल खेलते हैं, खेलते हैं मतलब पहले भी खेलते थे अभी भी खेलते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया यहाँ पे। अगेन सो डू डज लगेगा इसमें, डू वी, अगेन नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो नॉट आ गया आपका थर्ड पोजीशन पे। डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। वी हैव प्लेड द गेम, वी हैव प्लेड द गेम, एक्शन फिनिश जस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हम गेम खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड द गेम, पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अपना हेल्पिंग वर्ब उठा के लाना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम हैव वी प्लेड द गेम, हैव वी प्लेड द गेम, क्या हम गेम खेल चुके हैं? दैट इज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, दिस इज कंटिन्यूअस सेंटेंस, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं। सो यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दिस एम, ये एम को आगे ले आना, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहां पे भी आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट, वी विल गो टू स्कूल, पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाना है आपको, वी विल गो टू, सब में इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा, आपका ध्यान रखिए, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, दिस विल को उठा के लाना है। विल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे? विल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे? ओके, आई केम हियर एवरी डे, अब ये बताइए कौन सा सेंटेंस है? आई केम हियर एवरी डे, केम, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम, कम, केम, कम। सो आई केम हियर एवरी डे, मैं यहां रोज आया, तो मैं यहां रोज आया, तो दिस इज सिंपल पास्ट सेंटेंस। सिंपल पास्ट को बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? डिड को यूज करना पड़ता है। सो हाउ विल यू मेक इट नेगेटिव इंटरोगेटिव? डिड आई नॉट कम हियर एवरी डे,
डिड लगेगा और डिड के साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये जो केम था वो क्या बन जाएगा, कम बन जाएगा। डिड आई नॉट कम हियर एवरीडे, क्या मैं यहां पे रोज नहीं आया, डिड आई नॉट कम हियर एवरीडे। ही कम्स हियर एवरीडे, अब देखिए यहां पे कम्स आ गया, इट मींस इट इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि पहले भी आता था अभी भी आता है। तो ही कम्स हियर एवरीडे, वो यहां रोज आता है, ही कम्स हियर एवरीडे, वो यहां रोज आता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगेगा, तो कैसे बनाएगा, डज ही, क्या बनाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ओके, डज ही नॉट कम हियर एवरीडे, डज ही नॉट कम हियर एवरीडे, क्या वो यहां रोज नहीं आता है। सो नाउ हियर दिस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो यहां पे नॉट लग गया, और चूंकि इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो कम्स में एस लगा हुआ था यहां पे वो यहां से हट जाएगा, क्योंकि वो डज में हमारे ईएस आ गया है। तो डज ही नॉट कम हियर एवरीडे, क्या वो यहां रोज नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट, हैव आई नॉट सीन हिम, पॉजिटिव इंटरोगेटिव बना, देखिए इट इज ऑलरेडी इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव पहले से ही बना हुआ है। हैव आई नॉट सीन, क्या मैंने उसे नहीं देखा है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस नॉट, तो हैव आई सीन हिम, क्या मैंने उसको देखा है, दिस इज पॉजिटिव इंटरोगेटिव। सिमिलरली, डिड ही नॉट डू हिज वर्क, पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाना है, डिड ही नॉट, अगर इंटरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, यहां से नॉट को हटा दीजिए। डिड ही नॉट डू हिज वर्क, क्या उसने ये काम नहीं किया, क्या सॉरी, क्या उसने उसका काम नहीं किया, और डिड ही डू हिज वर्क, क्या उसने उसका काम किया, तो ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा, बस नॉट हटाना है। ही विल बी कमिंग टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूस, वह कल आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुमारो। अब हमें क्या बनाना है इसको, this bring this will before the subject, so this will become will he be coming tomorrow, will he be coming tomorrow, क्या वह कल यहां आ रहा होगा, this is future continuous sentences. So this is how we convert these sentences in negative interrogative or in positive interrogative.